से मैं वैद्य ज्योति वर्मा आज के सेशन के लिए को होस्ट। और आज हमारे बीच में वैद्य कीर्ति कुमार जैन सर हैं। ही इज अ रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. He has done his BMS from NIA 1983 batch. We are very lucky to have a senior most Vaidya with us, and sir is very specialized in Nadi Adhyan and Anshansh Kalpana. Sir has been shown the keen interest in research and development department, and he is master in developing different formulations. He is specialized in Shwasakasha respiratory disorders, and he is founder of Herb India Company, Kota. For this, he has taken the VRS from his job, and he is the founder of his own company. Sir has organized various camps on Tamak Shwasa and allergy from 2008 to 2018. At this age also, he is actively seeing lots and lots of patients all over, coming from the Kota region and Rajasthan. And we are very glad to have him. And he would like to share his views of whole experiences of his age. He's getting, which he got from the patients, from his practice. He is sharing with us today. We are very lucky and glad to have him on the platform of Indian Institute of Ayurveda and Raj Shastra. Thank you, sir, and we welcome you with a great heart, sir. Pranam, sir. It's Most okay. welcome, sir. Most welcome. I think you are hearing me well. Yes, sir. Is it? Yes. Okay. First, regarding to Fuffusvikar, I want to say one thing. According to Shastra, it is somewhere asadhya or somewhere krachhasadhya vyadhi. In 1994, when I completed 25 years of my practice after completing the BMS, and I got a challenge from various institutions, various societies in Kota. Do something extra, something which is not known with for the humanity with the Ayurveda. I accepted that challenge in 1994. You see, you should know in Kota, say Bank of Kota, there is a thermal plant. It has 7 units of power production and consuming 2 rakes of coal per day in that thermal plant. So you can imagine the condition. What is the index? What should be the index of pollution in Kota? So I selected this disease, Fuffusvikar, respiratory tract disorders. And what happened? It was a really challenge for us. We have everywhere, and in that event also, he gladly participated my all efforts, and we could continue it for 15 days, 15 years, and we could got a place charitably, and we supplied some medicines freely and some prescription. You see, in 1994, in our first camp, we were having 80 patients for 3 days indoor treatment. Some were very critical, some was very out of this disease, but having dyspnea. I could get the blessings of my Lord Banwari Lalji Mishra. He given me some points that in that emergency, and you will wonder to know the disease which is called asadhya or krashasadhya. In that event, we could treat all 80 patients within 3 days.
some of them were on stretcher, some of them were on vehicle, bike, but they went by foot. And after the completing of 1 year of that event, on Sharad Purnima, our Guruji joined the meeting at their Jaipur, and he requested us to join us next day after Sharad Purnima, because they are having the meeting at Jaipur on Sharad Purnima, associating their Vedya, total Vedya of Jaipur. And in that meeting, Mishraji told that please remove this line from the text. Now we have tested, we have made the efforts, and it is not the asadhya. Maybe krasadhya, but it is not asadhya. And it was really very challenging. And while we know this, the benefits of our efforts, it was really challenging and joyful for us. At this time, during the corona also, no any patient which came to us was dead. No one which came to us. Of course, there were so many demises in Kota also, and we are not in such position that we could get the total patients with us. It was not possible. I started the treatment in May 2020. That time it was peak level in Kota. Kota in all over the world, it was on peak. And I started. My family was very opposed to me that why you are going to your clinic. But it was, it is my duty to attend the patients, and I could do. So it is just for giving you the introduction of the efforts and the effects made by Ayurveda. Okay, I think to describe the Fuffus Vikar, if I will use Hindi along with some English term also, if you could permission me to speak in Hindi, I will better describe Fuffus Vikar. सर इट्स ओके सर, आप हिंदी में कीजिए सर. हाँ हाँ हाँ. यस सर, यस. No, it will better for me. यस यस. फुफ्फुस विकार यानी नासिका छिद्र से लेकर वायु कोशों तक का पूरा मार्ग, इसको अपन फुफ्फुस विकार कहेंगे. आयुर्वेद में इसको 2 सेक्शन में बांटा है. ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में नासिका से और गले तक के विकार लिए हैं, और गले से नीचे वायु कोशों तक का यानी नासा छिद्र गले के बाद से श्वसनिका और वायु कोशों को फुफ्फुस में लिया है. यहाँ हम दोनों को एक साथ लेते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ लेना ही चाहिए. देखिएगा, जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिसीजेस हैं, अगर हम इनके ओरिजिन ऑफ कॉज में जाएंगे तो हमारे को प्रतिशय यानी राइनाइटिस ही मिलेगा. अब देखो, यहाँ मेरा फिर भी अंतर है. राइनाइटिस को हम केवल राइनाइटिस को प्रतिशय नहीं कह सकते. राइनाइटिस के अलावा भी दूसरी पैथोलॉजीज हैं जो प्रतिशय में आती है. यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, उनकी शुरुआत, ओरिजिन सोर्स वो नासिका है. नासिका का संक्रमण, नासिका के संक्रमण से वह संक्रमण फुफ्फुस तक गया, और उसकी वजह से सांस लेने की तकलीफ, खांसी, कास और जुकाम, ये 3 मुख्य रूप से कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आए. अब चूंकि
समय हमारे पास में बहुत कम है, 10:30 हमें पूरा करना है और 9:40 हो चुकी है, यानी 50 मिनट हमारे पास है। और फुफ्फुस विकार की अगर भूमिका भी सामने रखेंगे तो 50 मिनट कम पड़ेंगे। इसलिए मैं आज के इस मीटिंग के अंदर एक बार असर्टेडली और इसको डिस्क्राइब करता हूँ। अब हम शुरुआत करते हैं प्रतिशय से। प्रतिशय यानी dysfunction of nasal membrane. Is it right? Dysfunction of nasal membrane? Okay. Dysfunction of nasal membrane, pratishay. The causes of this disease, this disorder, is not only the infection. It may be due to Agnimandiya. It may be due to infection, and it may be due to allergy. Allergy of dust, allergy of cold wave, allergy of smell. These three are the major category to cause the pratishay. Pratishay means sneezing of nasal membrane. The sneezing starts the infection. Till there is no sneezing, there will be no infection. The cause of sneezing, just I told you, number one, allergy by cold wave, allergy by dust, allergy by fume, like that. Second one is Agnimandiya. Agnimandiya is the major cause of sneezing, rupture of nasal membrane. It's a major cause. And third one is infection. Infection is secondary. Till the nasal membrane is not ruptured, it will not get infected. It will not get infected. And after getting infected, it will infect total system. So what we need to protect our this primary disorder? In our Shastra, the primary treatment of such disorders is the nasya. In my language, मैं मेरे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि अगर नाक में तेल मेरी विधि से डाल सकते हो तो तुम्हारी यह बीमारी ठीक होगी, अन्यथा कोई चिकित्सा किसी भी तरह की तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। बहुत स्पष्ट आदेश है। सबसे पहले हमें नस्य की व्यवस्था करनी है, उसके बाद एसोसिएटेड जो सिम्टम्स हैं उनका ट्रीटमेंट। अब जैसा मैंने प्रतिशय के प्राइमरी 3 कैटेगरीज के अंदर डिस्क्राइब किया, नंबर 1 जो सबसे ज्यादा होता है दैट इज द एलर्जी विद कोल्ड वेव, एलर्जी विद डस्ट, एलर्जी विद some mites also, and allergy with Agnimandiya. Sorry, allergy with these fumes etc., smoke, fume etc. है ना? तो इस एलर्जी को रोकने के लिए सबसे पहली हमारी आवश्यकता है नस्य, और उसके बाद में है। अब उसके लिए इसमें जब हम दोषों का विवेचन करेंगे तो पाएंगे कि वात प्रकृति वाले अधिकांश मरीज, अधिकांश रोगी ये डस्ट की बीमारी से, मतलब ये एलर्जी की बीमारी से परेशान होते हैं। अब वात प्रकृति के कारण से होने वाली व्याधियां नासिका से जिनकी शुरुआत होती है, उसके लिए हमारे आचार्यों ने कंटकारी और हरिद्रा का उल्लेख किया है, और हम यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कंटकारी और हरिद्रा का प्रयोग जैसा समय होता है, जहां मरीज होता है उसके अनुसार इसका उपयोग कर लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा, केवल कंटकारी और हरिद्रा, इसके हम मेनली एक्सट्रैक्ट्स लेकर के उनके कैप्सूल बना करके रखते हैं। एक इसका हमने बच्चों के लिए सिरप बना के रखा हुआ है, और
कभी जहाँ पॉसिबल होता है तो वो लोग हरिद्रा कंठकारी अवले अपना शास्त्रीय योग है उसको बना लेते हैं। शुरुआत हमारी हरिद्रा कंठकारी अवले से ही हुई थी, जो हमने 94 में शुरू किया था। हरिद्रा कंठकारी अवलेख ये हमारे नासिका के समस्त विकारों को रोकने के लिए, जिनका कारण एलर्जी अनुर्जता है, ये इसको बिल्कुल रोक देगी। और नस्य का प्रयोग साथ में किया तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको मेरे यानी 25 और 26 28 साल का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ भी दवा की जरूरत नहीं है इसके अलावा, केवल मात्र इस सामान्य प्रयोग से। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिएगा साथ के अंदर अग्निमांदी भी है और आपकी डस्ट से एलर्जी भी है, तो फिर हमें और कुछ और योग साथ में लेने पड़ेंगे। अग्निमांदी के लिए सबसे अच्छा उपयोग हमारे यहाँ इसके लिए बताया है अदरक और पिपली, पाइपल लौंगा एंड जिंजीवर ऑफिसिनेलिस। इसको दोनों को हम साथ में उपयोग नहीं लेते। जहाँ जरूरत होती है वहाँ हरिद्रा के साथ अदरक का उपयोग करते हैं, और जहाँ जरूरत होती है वहाँ वासा के साथ में पिपली का प्रयोग। वासा के साथ पिपली का प्रयोग करने के लिए एक बहुत अच्छा योग है वासा खंड कुष्मांडावली। यह पित्त के साथ में कफ की विकृति है, जिसमें पित्त, क्योंकि हमारे पास में जितने पेशेंट्स आते हैं वह सब भर पेट एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक खा के आते हैं, तो उनका पित्त इतना बढ़ा हुआ होता है कि हम वहाँ कोई रस रस भस्म या कोई और इस तरह की औषधि तो दे ही नहीं सकते। पहले तो हमें उसका पित्त का शमन करना पड़ता है और पाचन करना पड़ता है। कफ जो बन रहा है उसका पाचन करना है, पित्त का शमन करना है। तो कफ का पाचन और पित्त का शमन, इन दोनों के लिए शास्त्र का एक बहुत अच्छा योग है वासा खंड कुष्मांडावली। चक्रदत्त में भी है, चरक संहिता का योग है। इसका प्रयोग जहाँ अग्निमांदी भी है और अनुर्जता भी है, दोनों स्थिति के अंदर इसका नियमित प्रयोग 2-3 साल 4 साल तक करना चाहिए। वो जड़ से ठीक होगा, लेकिन सबके साथ नस से जरूरी है। तीसरा, जिसमें संक्रमण बहुत जल्दी और बहुत तेज गति से फैल गया है, उसमें नासास्राव, नासास्राव के साथ कर्णस्राव, कर्णशूल, गलशोथ, गलक्षोभ, इरिटेशन ऑफ थ्रोट, पेन, ओटूरिया एंड कंजक्टिवाइटिस, अविशन, ये सब उसके साथ एसोसिएटेड कॉज हैं। ये सब उसके साथ होते हैं, एक अकेला नहीं होगा। इन्फेक्शन हुआ है तो चारों को एक साथ लेगा, और वो स्थिति बड़ी खराब होती है मरीज के लिए, और वो इतना परेशान हो जाता है, दिन भर बेचैन, उधर कान में दर्द, उधर कान में से कुछ बाहर आ रहा है, उधर आंखों में खुजली और लाल अश्रु बराबर गिर रहे हैं, और नासा की स्थिति खराब और गला भी खराब। ऐसी स्थिति के अंदर हम त्वरित प्रयोग के लिए महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग आवश्यक है। यह इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे अधिक प्रभावी रोग महालक्ष्मी विलास रस। उसके साथ में सादा नारदीय लक्ष्मी विलास रस भी दें, और विषाण भस्म का उपयोग करें। आजकल विषाण की बैंड लग गया है, इसलिए वो श्रृंग भस्म के नाम से आता है, श्रृंग भस्म का उपयोग करें। सीतोपलादी स्राव को रोकने में सबसे अधिक प्रभावी है। तो सीतोपलादी, शंख भस्म, लक्ष्मी विलास रस और बृहद लक्ष्मी विलास रस। जहाँ स्राव ज्यादा है तो वहाँ विषाण का या शंख का प्रयोग करें, और जहाँ स्राव कम है तो वहाँ अभ्रक भस्म का। लेकिन महालक्ष्मी विलास रस या बृहद लक्ष्मी विलास रस का प्रयोग ऐसी स्थिति में करना चाहिए। त्वरित लाभ मिलता है, एक दिन में 2 दिन में मरीज ठीक होता है, और फिर उसके बाद में फॉलो ट्रीटमेंट के लिए हम जैसी रोग की प्रकृति है उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा करें। दोषों की स्थिति और रोगी की प्रकृति। 3 योग मैंने इसमें आपको प्रतिशय के लिए बताए, प्रारंभिक और जो मूल रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। हरिद्रा कंठकारी अवले, हरिद्रा अदरक अवले, वासाखंड कुष्मांडा अवले।
इसके साथ में चार पांच और योग हैं, मैं सिर्फ उनका नाम बताऊंगा, अध्ययन करेंगे तो आपको उन सब का कारण भी समझ में आ जाएगा क्यों दिए जा रहे हैं, और प्रचलित नहीं हो पाए वो एक अपना अलग विषय है। एक योग है शट्यादि चूर्ण। शट्टी माना कचू। यह पित्त कफ के जो लीन संग्रह है फुफ्फुस के अंदर, जब कफ और पित्त पित्त के कारण तो शुष्क हुआ और कफ, शुष्क कफ लीन हो गया, उस स्थिति के अंदर उस कफ को निकालने के लिए शट्यादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वही स्थिति अगर अग्निमांद्य के रूप में, अग्निमांद्य के साथ है, तो सोवर चलादि योग, सोवर चलादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और जैसा मैंने बताया अनुज्ञता है, तो उसके लिए जो नस्य ही पर्याप्त औषधि है, उसी का प्रयोग हमें नियमित रूप से करना चाहिए। अनुजता को रोकने के लिए नस्य से अच्छी कोई औषधि नहीं है। और साथ में हरिद्रा कंठकारी का। यह मैंने थोड़ा, क्योंकि मैं पहली बार इसमें साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे कितना चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए और कितना व्याधि पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अभी मैंने प्रतिशय वाली बात की। अब मैं आता हूँ कास के ऊपर। देखिए, कास और श्वास ये दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, और मेरा ये मानना है कि बिना प्रतिशय के कास नहीं हो सकता और बिना कास के श्वास नहीं हो सकता। तो श्वास और कास दोनों के मूल में प्रतिशय होते हैं। केवल एक स्थिति ऐसी आती है जिसके अंदर सालों तक प्रतिशय बना रहता है लेकिन कास नहीं होता, और श्वास तो होगा ही नहीं, जब कास नहीं तो श्वास भी नहीं होगा। वह स्थिति बहुत, मतलब जब ये नासा का इन्फेक्शन जब कान, गले और आंख तक जाता है, उस स्थिति के अंदर वो इतना परेशान होता है कि या तो एकदम तीव्र एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक्स लेगा, या हमारे पास आएगा तो हम भी उसको महालक्ष्मी विलास और इस तरह का उपयोग करेंगे, तो वो 10, 12, 15 दिन के अंदर ठीक भी हो जाता है। फिर जब रिपीट होगा तो वापस ले लेगा। तो उसको कास नहीं होता, वो केवल नासा विकार तक सीमित रहता है, कास नहीं होता उसको। कास तभी होगा जब अग्निमांद्य हो या अनुर्जता हो, यानी एलर्जी हो, उस स्थिति में कास हो। कास का मतलब ब्रोंकाइटिस, सीधा सीधा प्राइमरी अपन लैंग्वेज यूज करें, ड्राई कफ के अंदर फेरिंगाइटिस या लेरिंगाइटिस। लेरिंगाइटिस नहीं कहना चाहिए, फेरिंगाइटिस या ब्रोंकाइटिस। अब देखिएगा, कास जब हुआ तो अब जैसा मैंने बोला प्रतिशय मूल होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मरीज ये कहता है कि मुझे जुकाम नहीं होता, मुझे कोई प्रतिशय नहीं, मेरी नाक नहीं बैठती, लेकिन यह कहना उसका भ्रम है। उसको पता नहीं चलता, 2 घंटे 4 घंटे नासा स्राव हुआ और उसको कास हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो वो उसको पता नहीं लगता है और वो आपसे यही कहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। चाहे 2 घंटे के लिए ही स्राव हो, लेकिन उसके बिना कास नहीं होगी। ये बात एक अलग है कि किसी को 2 घंटे के स्राव से कास हो गया और किसी को 4 दिन के स्राव के बाद कास हुआ, ये एक अलग बात है, लेकिन प्रतिशय मूल रूप से होता है। उसके बाद में ही वह संक्रमण और श्वास नली में जाएगा। अब यहाँ चिकित्सा का जब प्रश्न आता है तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसको हमें आगे ले जाना पड़ेगा। यहाँ हम बाल सुधा, चंद्रामृता, अभ्रक, ऐसी चीजों का साथ में और प्रयोग करना चाहिए। वो तो है ही है जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया, अतिशय की चिकित्सा के लिए जो प्रारंभिक योग बताए हैं वो तो है ही है, उसके साथ में कुछ थोड़े से और ये अपने अभ्रक भस्म है, बालसुधा है, चंद्रमता है, श्रृंगाराभ्र रस है, इनका जैसा अपने को उचित लगे उसके हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। इस कास्ट में एक अनुभव जो हमारा है वो मैं खास तौर से आपको बताना चाहता हूँ। राजस्थान में, और इसका बहुत आयत से प्रयोग हुआ था जब कालेड़ा कृष्ण गोपाल फार्मेसी बाल जीवन वटी बनाती थी।
बाल जीवनवटी कृष्ण गोपाल कारेड़ा बनाता था। पता नहीं क्यों बंद हुई। उनके बंद होने के बाद में हमने हमारी फार्मेसी में इसको बनाना प्रारंभ किया। मेरा ऐसा मानना है और मेरा अनुभव कहता है, बाल जीवनवटी का प्रयोग करने के बाद में श्वास का कोई रोगी बीमार नहीं रह सकता। ये मेरा अनुभव है 30 साल का। अब ये बात जरूर है कि इसकी उपलब्धता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये एक पहले अपन इसका अध्ययन करें, और यह है रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह, कारेड़ा का जो ग्रंथ है रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह। इसके प्रथम भाग में इसका वर्णन है बाल रोगों में, बाल जीवनवटी। इस बाल जीवनवटी के घटक द्रव्यों की भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आपसे। इसमें प्रमुख घटक है गोरोचन। अब गोरोचन आजकल मिलता नहीं है, सरकार ने बैन लगा दिया, और अगर आपको कोई दे भी देगा तो वो नकली है, असली गोरोचन नहीं मिलता। तो गोरोचन छोड़ दें। उसके बाद में एलवा। एलवा गोरोचन से डबल, और एलवा से डबल केशर। केशर के साथ में कंटकारी, सोलेनम जेंथोकार्पम, उसके फूल, कंटकारी के फूल, पुष्प, है ना। और आपका केशर हुआ, ये एक अपना होता है सत्यानाशी, जिसको अपन कहते हैं शास्त्रीय योग की सत्यानाशी के नाम से आता है उसका, उसके बीज, और एक यवक्षार। ये कुल 7 द्रव्यों का योग है, जिसमें से एक मिला नहीं, गोरोचन, उसको हटा दिया। बाकी 6 द्रव्यों का योग है। और इसके इतने अच्छे परिणाम हैं, कितना भी लीन कफ हो, किसी भी उम्र का हो, यानी 4 दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं, 4 दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं। और जिसको 40 साल से खांसी है, मतलब काश है, उसको भी दे सकते हैं। इसका प्रयोग या तो चंद्रामृता के साथ करें या अभ्रक के साथ करें। अब ये जहाँ अग्निमांद विशेष है तो वहाँ चंद्रामृता लें, और जहाँ संग्रह कफ की उत्पत्ति विशेष है, यानी फुफ्फुस में और अपने कफ की उपस्थिति ज्यादा लीन है और ज्यादा मतलब मात्रा में है, तो अभ्रक का प्रयोग करें। और साथ में कालिस आदि, सीतोफल आदि, या ये शक्ति चूर्ण जो मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई भी आदमी ले सकते हैं। काश के इलाज में इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी इससे आगे जाने की जरूरत। जब इस काश के जीर्ण होने पर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो वहां से हम श्वास शुरू होता है, वहां हम श्वास पे आते हैं, तब जाकर के और व्यक्ति को सांस लेने की तकलीफ होती है। अब जब श्वास का हम विचार शुरू करते हैं, तो श्वास में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि श्वास का कारण प्रतिशायी ही है या कोई और है। यहाँ हमको श्वास में 3 विकार प्रमुख रूप से मिलेंगे, 3 तरह के विकार प्रमुख रूप से मिलेंगे, और चौथे और पांचवें तरह के भी विकार मिल सकते हैं, लेकिन 3 तो प्रमुख रूप से मिलते हैं। पहला विकार जो अपन ने जिसकी अभी चर्चा करी, जिसमें पहले ब्रोंकाइटिस हुआ, फिर एल्वेलाइटिस हुआ, और अब वो एल्वेलाइटिस होने वालू कोष भी, और उत्फुल्लिका जिसको अपन कहते हैं, उसका एम्फीसीमा, एम्फीसीमा की जब स्थिति आ जाती है, ये लास्ट स्टेज है। एम्फीसीमा ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में लास्ट स्टेज, वहां तक पहुंच गए। एक तो यह इस प्रकार का श्वास मिला, इसी में हम तमक श्वास है, तमक श्वास इसी में लिए। ये हुआ मूल रूप से, और प्रतिशाय के कारण काश, और काश के कारण हुआ श्वास, ये एक कैटेगरी है। इसके पेशेंट्स लगभग 60% इसके पेशेंट होते हैं। लेकिन इन 60 के अलावा जो 40% पेशेंट, यानी श्वास के 40% पेशेंट्स तो सिर्फ निदान ना होने के कारण से परेशान है, उनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, इसलिए वो सांस की दवाइयां खा खा करके दुखी हो रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कारण है आदमान।
डिसेंडेड आपका ये डायफ्राम, असेंडेड डायफ्राम। असेंडेड डायफ्राम यानी इसको अपन कहेंगे आधमान। आधमान की वजह से 20% श्वास के रोगी मिलते हैं। बड़ी विचित्र बात कह रहा हूँ मैं आपसे ये बात, लेकिन हमको श्वास का जब कोई भी मरीज आए, यानी जिसको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसको आत्मान तो नहीं है, यानी असेंडेड डायाफ्राम तो नहीं है। ये सबसे पहले, अगर वो है तो आप उसकी अनुलोमक चिकित्सा कीजिएगा। जब तक उसकी अनुलोमक चिकित्सा नहीं होगी तब तक वो ठीक नहीं होगा, और जैसे ही अनुलोमक चिकित्सा हुई वो ठीक हो जाएगा। और वो कहेगा कि साहब मैं तो 20 साल से परेशान था और आपने तो मुझे 4 दिन में ठीक कर दिया। ऐसा होता है, और कितने लोगों के साथ होता है? श्वास के 20% लोगों के साथ होता है। वह 4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन यह निदान करने की बात है, संप्राप्ति देखने की बात है कि इसको श्वास क्यों हुआ। जब हम पूरी उसकी रोग की मतलब उसकी हिस्ट्री लेंगे तो वहां हमें ये पकड़ना आएगा कि इसको आत्मान होता है। पेट फूलने के बाद इसका सांस लेने में तकलीफ आती है, भोजन करने के बाद इसको सांस लेने में तकलीफ आती है। तो उसके अंदर हमें सदा अनुलोमन चिकित्सा करना चाहिए। और अनुलोमन के लिए इस स्थिति में सबसे अच्छी औषधि क्या? एक तो मैंने आपको जो शुरू में बताया था, सोवर चलादी। सोवर चलादी चूर्ण, 3 घटक उसके प्रमुख हैं: भारंगी, काला नमक और शुंठी और शर्करा। भारंगी, काला नमक, शुंठी और शर्करा। अब जब अपन इन तीनों घटक द्रव्यों का द्रव्य गुण के आधार पर अध्ययन करेंगे तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे कि ये अनुलोमक भी हो गया, कफ निस्सारक भी हो गया, दोनों काम इससे हो जाएंगे। तो जहाँ अग्निमांद्य है वहाँ इसका प्रयोग प्राथमिकता से करना चाहिए। सोवर चलाती योग शास्त्रीय योग है, और मुश्किल भी नहीं है, 4 चीजें हैं खाली इसके अंदर। आत्मान में विबंध भी हो सकता है, तो विबंध की चिकित्सा करें। विबंध के लिए वातिक प्रकृति है तो सबसे अच्छा है एरंडरस थेरेपी। पैथिक प्रकृति है तो अमलकी का प्रयोग करें, और कफ प्रकृति है तो फिर बहुत सारे योग हैं। जो दुनिया चल रही है, जितने भी जो अपन विरेचन द्रव्य, जितने भी जो विज्ञापन और ये सारी दुनिया भरी पड़ी है, ये सब कफस विबंध के रोगियों के लिए है। और दूसरे भी ले लेते हैं, परेशान होते हैं, वही करें। चल, तो ये 20% रोगी मैंने आपको बताए जिनका कारण आत्मान है, अग्निमान और आत्मान। अब जो बचे 20% वो हैं कार्डियक पेशेंट। उनके सांस की तकलीफ का कारण हार्ट। अब यहाँ जब हार्ट उसमें कारण बना तो हमें हार्ट का डायग्नोसिस करना। हार्ट का सबसे बड़ा जो कारण है जिसकी वजह से सांस तुरंत होता है और लोगों का ध्यान भी नहीं जाता, कभी चेस्ट पेन नहीं हुआ, कभी पर्सपायरेशन नहीं हुआ, कभी कोई पल्स मतलब जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई, तो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर भी उसको सांस की तकलीफ है और सांस का इलाज वो चला रखा है। लेकिन जब हमने एक्सरे किया तो पता चला कि इसके और वेंट्रिकुलर्स डायलेटेड हैं, या डायलेटेड वेंट्रिकुलर्स। और जहाँ डायलेटेड नहीं है, हाइपरट्रोफिक वेंट्रिकुलर है, तो वहाँ भी सांस है, लेकिन वो अलग तरह का सांस है और ये अलग तरह का। दोनों को मैं अभी डिफ्रेंशिएट करूंगा आपको कि हाइपरट्रोफिक ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एलवीएफ और या आपका डायलेटेड कार्डियम। कार्डियम में आर्टिकल भी ऑरिकल भी हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर भी हो सकते हैं। ऑरिकल में मोस्टली नहीं होता, बहुत कम केस मिलते हैं जिसमें ऑरिकुलर डायलिटेशन मिलता है, लेकिन वेंट्रिकुलर डायलिटेशन के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। हृत विस्थिति, अपने यहाँ नाम है उसका हृत विस्थिति, डायलिटेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियम। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा योग है। पता तो हमें बहुत आसानी से लग जाएगा, एक्सरे में पता लग जाएगा। हाइपरट्रॉफी है तो एक्सरे में हाइपरट्रॉफी आ जाएगी, और डायलिटेशन तो डायलिटेशन आ जाएगा। दोनों की पल्स में अंतर आएगा। डायलिटेशन वाले की पल्स नॉर्मल चलेगी,
पल्स रेट डिस्टर्ब नहीं होती है, और एलवीएफ वाले की पल्स रेट डाउन हो जाती है। ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन पल्स रेट डाउन हो जाएगी। तीसरा, उसको एक सिम्टम और साथ में आएगा, शोथ। लंबा पाँव को नीचा कर बैठने पर उसको पाँव पैरों में पाद शोथ जो है वो डेवलप होगा। अब तीन सिम्टम्स एक साथ अगर मिल रहे हैं, पैरों में सूजन आ जाती है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है और पल्स रेट डाउन रहती है, और एक्सरे में पता लगा कि हार्ट की साइज तो बड़ी है। अब उसमें आप ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पुराने जो अनुभवी लोग हैं उनको तो पता लग जाता है जल्दी से, लेकिन कुछ लोगों को नहीं लग पाता कि इसको हाइपरट्रोफिक है या डायलिटेशन। और ईसीजी और आपका इसकी जो स्कैनिंग करते हैं वह रिपोर्ट के अंदर डायलिटेशन लिख देते हैं, जबकि वो डायलिटेशन नहीं होता। ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। वो डायलिटेशन नहीं है लेकिन उन्होंने डायलिटेशन लिख दिया हाइपरट्रोफिक में। लेकिन हमारी चिकित्सा में हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अस्थमा ड्यू टू कार्डियक डिसऑर्डर्स, उसमें दो प्रमुख विकार हुए। वन इज हाइपरट्रोफी ऑफ वेंट्रिकल एंड सेकंड इज डायलिटेशन ऑफ वेंट्रिकल। डायलिटेशन ऑफ वेंट्रिकल है तो उसकी चिकित्सा बिल्कुल अलग है, और हाइपरट्रोफी ऑफ वेंट्रिकल से तो उसकी चिकित्सा बिल्कुल अलग है। अब मैं पहले हाइपरट्रोफी की बात करता हूँ, जिसको हम सामान्य भाषा में एलवीएफ कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। वो चाहे उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर कहें चाहे, और उसको हाइपरट्रोफी ऑफ वेंट्रिकल बात एक। अब इसमें क्या होता है, 30% काइनेटिक एनर्जी है, 40% है, 50% है। 50 तो मैक्सिमम है, 50 से ऊपर जाती ही नहीं है, और 30 मिनिमम है। 30 से नीचे आने के बाद फिर वो बिस्तर से नहीं उठ पाएगा, फिर वो बिस्तर पे ही रहता है। लेकिन 30 to 50 के बीच में वो आपके पास आएगा, बात करेगा, लेकिन बात करते करते भी उसको सांस लेने में तकलीफ आएगी, जबकि लंग्स बिल्कुल क्लियर है। जब आप उसकी स्थिति में जाएंगे तो पता लगेगा कि इसको पैरों में सूजन भी आ सकती है। उस कंडीशन के अंदर सबसे अच्छी औषधि है आरोग्यवर्धन। आरोग्यवर्धन का प्रयोग हमें करना चाहिए। आरोग्यवर्धन के प्रयोग के साथ में जब हम ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट भी करना चाहेंगे, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, उसका बढ़ा हुआ रहता है, परमानेंट बढ़ा हुआ रहता है, तो उसकी चिकित्सा के लिए हमें आयुर्वेदिक औषधि का निर्णय करना चाहिए। तो उसमें ऐसी मेरी जानकारी में कोई शास्त्रीय औषधि नहीं आई, लेकिन इस पर बहुत रिसर्च हुई, बहुत लोगों ने रिसर्च पेपर निकाले, और उसमें से एक भोपाल की डॉक्टर, नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो भोपाल से हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च निकाली। उसके अंदर 5 घटक द्रव्य हैं, और 5 में आपका जटामांसी है, शंखपुष्पी है, सर्पगंधा है, अश्वगंधा है। इन पांचों का अलग अलग रेशो में, दो दो तरह के रेशो हैं। कुछ में 50% है, किसमें 100%, सम भाग है, कोई हाफ, आधा भाग है। इस तरीके से उन्होंने घन सत्व निकाल करके उसका कंपाउंड बना करके रिसर्च पेपर दिया था। उस पेपर को जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसकी मैंने शास्त्रीय अवधारणा के अनुसार उपयोगी लगा, और फिर मैंने उसको बनाया और उसका उपयोग किया। अब उसमें एलवीएफ है तब तक तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ एक समस्या और आ जाती है, जहाँ ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करने लगता है। हालांकि इससे संबंध नहीं है, जिस विकार पे अपन बात कर रहे हैं उसका उसका संबंध नहीं है, लेकिन जब हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं तो 1-2 मिनट लगे हाथ वो चीज़ भी अपन कर लेते हैं, कि जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी वेट अपनी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो उसका असर यहाँ वेंट्रिकल्स पे भी आएगा। फिर वो जितनी, ये जो आपका नॉर ग्रुप है, टोर ग्रुप जितना भी है मेडिसिन का, एलोपैथिक मेडिसिन का, वो फेल है, वो काम नहीं करेगा आपका, और वो पेशेंट परेशानी रहता है, वो फिर आपके पास भी आ सकता है। तो उस स्थिति के अंदर हमारे को पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट उसके साथ से यूज करना चाहिए। पाइन बार्क जो अपना ये सबसे अच्छा तो स्पेन का आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्पेन का मिले, जैसा मिल जाए पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट उसमें साथ में यूज करना चाहिए, जो वो 5 द्रव्य मैंने आपको बताया उसके साथ में। यह
जो 6 चीजों का कंपाउंड बना करके हमने स्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को दिया है। और मैंने जहाँ पहले 2 बार देना पड़ता था, बाद में 1 बार देना पड़ा, और फिर कभी लिया कभी नहीं लिया, ये स्थिति उनकी आई। और बिल्कुल सफल चिकित्सा होती है इसकी। एलवीएफ के अंदर ब्लड प्रेशर में हमें पाइन बार की जरूरत नहीं पड़ती। पर अब ये देखना पड़ेगा कि स्क्लेरोसिस है तो फिर उसमें पाइन बार की जरूरत है, और स्क्लेरोसिस नहीं है तो फिर उसके बिना भी हम दे सकते हैं। सर्पगंधा के जो शास्त्रीय योग हैं, शास्त्र में इसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन जो बाद के शास्त्र बने हैं वहां पर इनका वर्णन मिलता है। लेकिन उसकी प्रामाणिकता, प्रामाणिकता से मेरा मतलब है बैरोमीटर, कितना दिया तो कितना गिरा, कितनी डोज देने से कितना ब्लड प्रेशर नीचे आया। वो जो स्टैंडर्ड एक बनना चाहिए, वो पाउडर फॉर्म में या जो सामान्य रूप से जो बन के आते हैं उनमें इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे को एस्ट्रेक्ट फॉर्म में और उसका स्टैंडर्ड तय करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 10% का लिया, 5% का लिया, 8% का लिया, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग परसेंटेज से आते हैं, या वो किसी भी परसेंटेज से आए, हमने हमारी डोज को उसके अकॉर्डिंगली सेट किया और उसका हम प्रयोग करेंगे तो सर्पगंधा का परिणाम आएगा। वरना सर्पगंधा चूर्ण लिखे आए तो कुछ पता नहीं लगेगा वो क्या है। पता नहीं, ये भी पता नहीं लगेगा कि ये सर्पगंधा भी है या कोई और है, पता नहीं क्या दिया है उन्होंने। हम इतना तो पहचान नहीं सकते कि ये सर्पगंधा है या इसमें कुछ और भी मिला हुआ है। तो यहाँ ये थोड़ा सा विषयांतर मैंने आपको बताया। अब जो तीसरा जो मैंने आपको बताना है अस्थमा के बारे में, अपना कार्डियक अस्थमा के बारे में, डायलिटेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। इसका बहुत अच्छा योग है। एक तो हृदय वल्लभ अवले, हृदय वल्लभ अवले का वर्णन अपने अष्टांग हृदय में है, चरक संहिता में भी। यह बाजार में नहीं मिलता, लेकिन मैं इसको बनाने की विधि बहुत सरल है, आपको भी बता देता हूँ। आप भी इसको बहुत, आप भी समझ जाओगे और बता दोगे आगे, उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन वाला, लेकिन प्रभावी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रभावी है। यानी मेरे को इसका भी अनुभव 30 साल का है हृदय बल्लवली का। जहाँ डायलिटेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स है, वहां पर हृदय बल्लभ अवले का प्रयोग शंकरवटी के साथ, शंकरवटी, ये भी उसी में, शंकरवटी तो मिलती है, दूसरी कंपनी बनाने लगी है, वो मिलती है। नागभस्म में इसका प्रमुख योग है शंकरवटी का। तो शंकरवटी के साथ में जब हृदय बल्लभ अवले का प्रयोग करेंगे, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे आपको कार्डियक अस्थमा में, बिकॉज ऑफ डायलिटेशन। आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, ये बहुत विश्वास के साथ में कह रहा हूँ आपको। और अब मैं आपको बताता हूँ हृदय बल्लभ अवले बनाने का तरीका, बहुत आसान है। मुनक्का, बड़ा दाग, वाइटिस विनिफर, इसको गुलाब जल में भिगोना। अब गुलाब जल शुद्ध चाहिए, बाजार में अधिकतर आर्टिफिशियल आते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान की एक कंपनी है उदयपुर की, साधना फार्मेसी करके, उनका प्योर आता है। हम वही काम में लेते हैं, राजस्थान में तो उनका मिल जाता है तो हम वही काम में लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बनाते हैं। गुलाब जल असली होना चाहिए। असली गुलाब जल के अंदर मुनक्का दाग को भिगो दिया, कितना डाला, जितने में वो डूब गया, और उसको 10-12 घंटे के लिए छोड़ दिया। मुनक्का दाग पहले धो लें, धोने के बाद में उसको गुलाब जल में डाल दें, गुलाब जल में वो अच्छे से गल जाएंगे 10-12 घंटे में। उसके बाद में उनका बीज निकाल करके और मिक्सी से उसकी पिस्ती बना लें, कल्प बना लें उसका। कल्प थोड़ा पतला बनेगा, है ना। और उसके बाद में जिस तरीके से अपन हलवा सेकते हैं घर में, आटे का हलवा बनाते हैं, बेसन का हलवा बनाते हैं, उसी तरीके से उसको घी में सेक लें। 250 ग्राम मुनक्का में 50 ग्राम घी चाहिए, पर्याप्त होता है, ज़्यादा नहीं डालना घी। घी जितने में सीख जाए, महिलाएं सेकने में एक्सपर्ट होती हैं, सीख जाएगा, उनको पता लग जाएगा। उसके बाद में 100 ग्राम चीनी उसमें डाल करके उसको पका लें, क्योंकि हलवा बिना चीनी के नहीं पकता, वो कच्चा रह जाएगा। पकेगा कब, जब वो उसमें चीनी डालेंगे। तो वो हलवा बन गया किसका, मुनक्का दाल का, गुलाब जल में भिगोया हुआ।
और उसको ठंडा होने पर 250 ग्राम मुनक्के के साथ में 5 ग्राम हरी इलायची का चूर्ण उसमें मिला, 5 ग्राम हरी इलायची का चूर्ण, ये आपका हृदय बल्लभ अवलेह तैयार हो गया। इसको अगर अपने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो चाहेंगे तो ये जितने भी मैंने आपको फार्मूलेशंस दिए हैं, ये फार्मूलेशंस में टेक्स्ट में भी अवेलेबल करवा, जिनकी जरूरत होगी उनको हमें टेक्स्ट में भी अवेलेबल। तो ये मेरे पूरे लेक्चर को वैसे तो आपने रिकॉर्ड किया ही है, और जरूरत होगी तो जो भी मेरे से इंक्वायरी आएगी मैं उसका जवाब। तो यह मैंने आपको मोटा मोटा एक, इसको अपन कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विद ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ दो तीन चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 15 मिनट है अपने पास में, तो मैं और बताना चाहता हूँ। कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनको कहा जाता है चुटुकले। अपने जैसे कहते हैं ना, आयुर्वेद में ये शब्द जगह प्रचलित है, चुटुकले। यानी किसी ने कहा ये कर देना और वो कर गया और उसका परिणाम आ गया। अब होता क्या है कि सामान्य रूप से वो क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, ये पता नहीं लगता, और कहीं काम किया कहीं नहीं किया, तो मुश्किल हो जाती है। हम लोग उसको समझें और समझ करके उसके रस गुण वीर्य विपाक का अध्ययन करके और उसके बाद ये निर्णय करें कि हमें इसको कहाँ काम में लेना और कहाँ नहीं लेना। अब मैं इस तरह के चुटकुलों की कुछ कुछ बात करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर हमने जितनी भी वर्कशॉप सेमिनार जहाँ जहाँ भी अटेंड किए, मैंने कोई 40-50 सेमिनार वर्कशॉप अटेंड की होंगी, अधिकतर ऑडियंस की इच्छा फॉर्मुलेशन की रही है। चुटकुले बताओ आप हमारे को, हमें बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं जाना है। जो मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, लोगों की, सुनने वालों की इच्छा अधिकतर ये रही है कि फॉर्मुलेशन की। तो वो फॉर्मुलेशन पे मैं थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ। अब जैसे एक चलते हुए आदमी ने मेरे से कहा कि आप ये रीठा, जो कपड़े धोने के काम आता है रीठा, इसको जला के इसके भस्म को खांसी में दो, आपको आराम मिल जाएगा। मैंने कहा यार ऐसे कैसे दे दूंगा तुम्हारे कहने से, लेकिन तुमने कहा है तो इसके पीछे कोई कारण तो होगा। मैंने उसका अध्ययन किया, तो जहाँ अग्निमांद्य की वजह से कफ मूलक का था, वहाँ अरिष्टक भस्म, अरिष्टक यानी अरीठा यानी रीठा, और इस जला के अंतर्धूम इसको जला करके और उसकी भस्म का प्रयोग किया। मेरी वाइफ को ही था और कहीं जाने की जरूरत नहीं, और उन्हीं को देख करके उस शख्स ने कहा था मेरे से। तो वो मुश्किल से कोई 7-8 दिन दिया होगा, और उसके बाद उसको खांसी नहीं हुई। उसकी खांसी का कारण क्या था? अग्निमान, अग्निमांद्य से उसको कफ उत्पन्न होकर के खांसी, और वो कफ उनका पूरा निकल नहीं पाता था और खांसी बनी रहती थी। अरिष्टक भस्म का जब हमने प्रयोग किया, स्थायी रूप से ठीक हो गया। लेकिन उसके पीछे जब हमने उसके द्रव्य गुण का अध्ययन किया, तो वहाँ मूल में कारण निकला अग्निमान। अग्निमान की जन्य काश में, उसमें प्रतिशय तो होना ही है, वो तो सबसे पहले की बात है, उसमें अरिष्टक भस्म का प्रयोग। इसी तरीके से तमक श्वास, जो कि आपने तो इस पे सेशन भी लिया है एक तमक श्वास के ऊपर, मैं नहीं जानता उन्होंने कितना क्या बताया है, लेकिन मैं मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ आपको। तमक श्वास, हालांकि हमारी तरफ इसके पेशेंट ज़्यादा नहीं है, कोटा में उष्ण जलवायु है और यहाँ ज़्यादा पेशेंट इसके नहीं आते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि सन 94, 1994, मतलब तो जो हमने सबसे पहला जो हमारा फार्मूला गया था वो यही था। उसके आधार पर हमने 80 मरीजों को ठीक कर दिया था, और वो फार्मूला क्या था? हरिद्रा घी में सीखी हुई, यानी घृत भ्रष्ट हरिद्रा, और बाल सुधा यानी कंकण भस्म। जो मूल में जिसने फार्मूला बताया था, उसने शर्करा का प्रयोग किया था। उसने केवल 3 चीज बताई थी, बाल सुधा, हरिद्रा और शर्करा।
हमने उसमें थोड़ा संशोधन किया कि हरिद्रा शर्करा शर्करा की जगह मधुएस्टी डाल, मधुएस्टी का काम, मधुएस्टी मधुएस्टी का भी मतलब हमें फायदा मिल जाएगा और शर्करा का रिप्लेसमेंट हो गया, जरूरत ही नहीं शर्करा की हमारे को, तो मधुएस्टी किया। फिर जब अध्ययन करते करते तो उसमें आया कि इसके अंदर कंटकारी यानी छोटी कटेरी सोलेनम जेंथ्रोकार्पम इसका भी प्रयोग करें, तो हमने उसका भी प्रयोग किया। तो ये चार चीजें मिला करके हमने एक पाउडर बनाया, चूर्ण बनाया। क्या क्या? कंटकारी यानी सोलेनम जेंथ्रो, पंचांग, पंचांग लिया, उसका पाउडर कर लिया। मुलेठी यानी मधुएस्टी उसका पाउडर कर लिया। और हरिद्रा उसका पाउडर करके घी में सेक लिया। और बालसुदा यानी आपका टंकण फल, चारों सम मात्रा में मिला करके और हमने पाउडर बना करके रख लिया। 2-2 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार। जो तमक श्वास है ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें सबसे अच्छे परिणाम रहे। बहुत सरल और घरेलू उपयोग, लेकिन बड़ा अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ मैं आपसे ये बात, बहुत अच्छे परिणाम रहे तमक श्वास में। तमक श्वास में मुख्य रूप से कफ पित्त प्रकृति के लोगों को होता है। तमक श्वास अधिकांश जो है वो कफ पित्त प्रकृति वालों को होता है। तो उनके लिए यह जो योग है मधुयस्ती, हरिद्रा और अपना बालसुधा और कटकारी, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और कुछ नहीं करना, बस लेते रहा। ठीक है, उसको तो वो सामान्य रूप से चल रहा है, यह भी उसकी बहुत बड़ी चिकित्सा है। यानी हमने असाध्यता से उसको कृत साध्य पे तो ले आए, या याप पे तो हो गया। याप पे हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ और चीजें हैं जो कोरोना के अनुभव की। कोरोना का जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए, मैं यहाँ ये बात कोरोना के संदर्भ में कह रहा हूँ, लेकिन एक और ऐसी व्याधि है जो इस अभी तक के वर्णन में नहीं आई, वो रह गई। जब कास का वर्णन कर रहे थे तभी उसको लेना चाहिए था, लेकिन वो रह गई। अभी उसका ध्यान आ गया, जैसे कोरोना की कॉम्प्लिकेशन में आए वो उसका ध्यान आ गया, जिसमें ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया। यानी आपके ब्रोंकाइस हार्ड होकर के डायलेटेड हो गई, जो कोरोना में 90% लोगों को हुआ। कोरोना और खाली ब्रोंकाइस तक नहीं हुआ, एल्वुलाइस में भी हुआ। अब कितना हुआ? मान लो 40% तक हुआ तो वो बच गया, 40 से 50 में कुछ बचे कुछ नहीं बचे, और 50 से ऊपर हुआ तो वो चले गए। तो जो 40% वाले थे, उन 40% को बच तो गए, लेकिन काश तो नहीं गया, सांस तो नहीं गया उनका। तो सांस मतलब खांसी से भी परेशान, ड्राई कफ है, शुद्ध मतलब शुष्क काश जिसको अपन कहेंगे। कफ है ही नहीं वहां पे, कफ कहाँ से आएगा? ब्रोंकियोटेसिस के अंदर कफ कहाँ से आएगा? कफ होगा तो भी नहीं आएगा। और वायु कोशों तक चले गया, एल्वेलाइज तक चले गया, और सेप्टम हार्ड हो गया, मतलब थिक हो गया। बड़ा चैलेंजिंग काम था ये, लेकिन इसको ठीक किया है कंटकारी घृत ने। यह भी शास्त्रीय योग है, कंटकारी घृत। पोस्ट कोरोना ड्राई कफ, जिसमें आपका ब्रोंकिएक्टेसिस भी आ गया और स्टेसिस ऑफ द एल्वेलाइज भी आ गया, इन दोनों की चिकित्सा केवल मात्र कंटकारी घृत से की। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 100 मरीज तो मैंने ठीक किए होंगे, मोर देन 100, बिल्कुल ठीक। और परेशानी कितनी रही होगी इसका अंदाजा तो अपन लगा सकते हैं कि कोरोना के बाद में कैसी दिक्कतें रही है। कंटकारी घृत का प्रयोग इसमें किया। ठीक इसी तरीके से जो कास के ऐसे पेशेंट जो वातिक प्रकृति के थे, और उस दौरान उनको कहीं लंबे समय तक धूल में रहना पड़ा, यानी जहाँ डस्ट बराबर उड़ रही है, रह रही है, या गांव है, गांव में तो डस्ट हमेशा रहती है, तो वहां उसको रहना पड़ा। और वो स्थिति वही हुई ब्रोंकियोटेसिस वाली, यानी अपनी श्वसनिका काठिन्य,
है ना, स्वस्निका काठिन्य, ये शब्द उसके लिए आएगा वो। तो वहां पर भी कंठकारी हरकत हुई थी। और 10 साल 20 साल, कुछ कुछ मरीज तो 30-40 साल के भी थे जो ब्रोंकियोस्टेसिस वाले, वो कंठकारी से ठीक। यह जो मैंने आपको पूरा अपना अनुभव बताया है, इसमें शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय भाषा में बहुत कम मैंने उपयोग में लिया है, क्योंकि वहां अगर मैं जाता, शास्त्रीय भाषा में जाता, तो प्रतिशत भी पूरा नहीं हो पाता। मेरा यह प्रयास रहा कि इस 1 घंटे के समय में अधिक से अधिक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी में दे सकूं, वो मैंने प्रयास किया। और इसको अभी अपने पास में 5 मिनट का समय है, अगर किसी ऑडियंस की कोई क्वेरी है तो अपन पूछ सकते हैं, हो सकता है ना, क्योंकि यस यस लंबा चैप्टर हुआ है। सर, बहुत अच्छा सेशन है। हाँ, और अच्छा लगा सर, आपने सभी फॉर्मुलेशंस बड़े हाँ, सहजता से बताए। मेरा इसके अंदर सीधा सीधा क्लिनिकल ट्रायल्स पर मैंने एम्फेसिस किया है इसको, यस सीधा सीधा क्लिनिकल ट्रायल्स पे एम्फेसिस किया है। इसमें मैंने कहीं शास्त्रीय ज्ञान बीच में नहीं दिया, वरना शास्त्रीय ज्ञान लेता ना तो अपन अभी प्रतिशय पे भी अटके रहते, है ना। और जो थोड़ा लिया है वो उतना ही लिया है कि जिससे हम निदान कर सकें। यस और मैं समझता हूँ कि आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, और टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर अपन इसकी पीडीएफ फाइल या जो भी मतलब आपका प्रोसीजर है उसके हिसाब से इसको यूटिलाइज करें। श्योर सर, श्योर सर। हाँ, ठीक है ना। सो सर, और फिर भी किसी का क्वेरी है तो आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यस यस, हाँ, I request all the delegates to please raise their questions, or they can raise their hands also, or they can unmute themselves. हाँ, Dr. हेलो Shashi सर। Tiwari. हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, प्रणाम सर। ये जो या 5 द्रव्य वाला आप बताए थे, जटामांसी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा और अश्वगंधा, तो इसमें 5वां कौन सा होगा? सॉरी, प्लीज रिपीट इट। सर, जटामांसी, शंखपुष्पी, हाँ, सर्पगंधा, हाँ, अश्वगंधा। हाँ, और आपने बोला था 5 द्रव्य, फिर तो ये अर्जुन 4 ही अर्जुन हुए अर्जुन ना? अर्जुन, ओके पांचवा सर। अर्जुन है। अब क्या होता है, मैं ओके सर, कॉपी थैंक यू किताब सर। लेके नहीं बैठा हूँ, ये जितना भी मैंने बोला है हाँ नहीं, ठीक ये है सर, बस एक्चुअली मेरी मेमोरी से पूछ रहे बोला थे ना। है ना, अर्जुन है हाँ जी, हाँ उसमें, जी सर। है ना। और और इसका आपको अगर फार्मूला चाहिए तो मेरा नंबर ये इसमें है, आप मुझे जी। मेरे नंबर पे रिक्वेस्ट कर दें, मैं आपको हम्म, इसकी स्ट्रेंथ, दो अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग से मतलब 3 घटक अलग स्ट्रेंथ के हैं, 2 घटक अलग स्ट्रेंथ के हैं, और इसके ओके। परिणाम मैंने लिए हैं, परिणाम आए हैं इसके, हाइपरट्रोफिक में भी आए हैं, और इस एथेरोस्क्लेरोसिस में भी आया है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर बार्क, उसका पाइन बार्क का यूज करना पड़ा, एक्सट्रैक्ट ऑफ पाइन बार्क वो यूज करना पड़ा था, तब उसका परिणाम आया। और और सर, उसका एक जो क्वेश्चन उसी परिणाम में आया और है। है, उसका जो जी परिणाम आया है वो इतना अच्छा आया है कि जो मरीज किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहे थे, यानी जी यहाँ सर। पर जो ये जो अपना एलोपैथिक के अंदर जो टॉर ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन है, एंटी हाइपरटेंसिव, जिसको खास करके इस बीमारी में देते हैं, वो सारी मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं आता। ब्लड प्रेशर मुश्किल से 150 से 40 पर भी नहीं आता, और आया है तो वापस 150 पे पहुंच जाएगा, और पल्स रेट डाउन रहती है, जी सर। और डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। ये नीचे का 90-95 पे रखा है और ऊपर का 150 पर चले गया, तो उस स्थिति के अंदर बेचैनी और बढ़ जाती है। तो यह जो फार्मूला है, आपको ये मेरा नहीं है, ये मैंने अध्ययन जी। किया है, ये कोई मैडम है भोपाल हम्म, की, उन्होंने रिसर्च किया, उसमें बनाया। अब मैंने तो यूज कर लिया, अब उनको पता नहीं कैसा लगा होगा, क्या पता भी लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, लेकिन ये अच्छा योग है ना, एलबीएफ वालों को देना चाहिए। जी सर। हाँ, और सर, एक आपने और बताया था जिसमें था कि आपने बोला 6 लेकिन 5 ही हो रहे हैं, दैट इज गोरोचन, एलुआ, केसर, हाँ, कंटकारी, हाँ, सत्यानाश। सत्यानाशी भी। यवक्षार, अच्छा सर, एक चीज यवक्षार। मैं पूछना एक चाहूंगी। एक इसमें मैं उसका बोटेनिकल नेम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म। सत्यानाशी के नाम से भावप्रकाश एर्जिमोन नगर जी में है, मैक्सिकाना सर। हाँ, सत्यानाशी अर्जिमोन के बीच। मैक्सिकाना, यस यस। हाँ, एर्जिमोन हाँ, मैक्सिकाना। हम्म। हाँ, वो मेरे को याद में नहीं आ रहा, यस। पर वो है।
है ना। और यह बहुत अच्छा योग है। अच्छा, इसमें जो है ना, इसकी अदरक के रस की भावना लगती है। अच्छा। हाँ, केवल एक भावना देनी है, अदरक स्वरस की, है ओके ना। सर। और जो गोरोचन नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह हमने एलोए को और आधे से पौन उसमें कर, इसका फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए 20 ग्राम आपका गोरोचन है और हम्म। 40 ग्राम उसका एलोए आएगा, एलुआ, और हम्म। 80 ग्राम उसमें ये बाकी सारी 5 चीजें आएंगी। तो वो एलुआ को हमने 50 की जगह 75 कर दिया, और बाकी सब चीज वो 100 पे रही, मतलब 40 की जगह 60 पे कर लिया और वो 80 80 पे रही। इस तरह से उसको हमने किया। तो कोई हमें दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एलवा और गोरोचन, हम्म। इन दोनों का वर्किंग एक जैसा है। जब अपन द्रव्य गुण का अध्ययन करेंगे ना और इस पर जाएंगे, तो दोनों का पित्त और कफ का निस्सारण, और किससे, मल के द्वारा, कांच जी से नहीं सर। है इसका निस्सारण, गोरोचन जी का और अपना ये एलवा का जो निस्सारण है कफ का, वो मतलब उसमें है, मल के द्वारा है। हाँ, और ये बहुत प्रोफेसर। जरूरी होता है, बच्चों में बहुत जरूरी होता है। बच्चों को खांसी बढ़ गई तो भाग जाएगा आपके पास से, दूसरे के पास चले जाएगा। जी बाल सर। जीवन वटी में उसकी खांसी मिटती है, निमोनिया मिटता है, और बहुत फास्ट एक्टिंग है। मतलब मैं आपको इसका मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। अब समय पूरा हो गया। 3 महीने के बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया कि घर ले जाओ, सेवा करो। 3 महीने का बच्चा, रात को 10:30 बजे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे ही परिवार की बात है। 10:30 बजे उनका फोन आया, बोले ऐसा हुआ। मैंने कहा तुम दुकानदार के पास जाओ, मैंने उनका एड्रेस दिया, वहां से दुकान खुलवाओ, उनसे दवा लो। और उन्होंने दवा दी। 11:30 बजे दवा शुरू हुई। मैंने कहा 1.5 1.5 घंटे के अंदर ये दवा देनी है, जिसको उन्होंने ये मान के डिस्चार्ज कर दिया था कि अब ये 2 3 घंटे में जाने वाला है। वह सवेरे ठीक हो गया। हम्म। आश्चर्यजनक बात कह रहा हूँ मैं आपसे ये, जी लेकिन सर। कपोल कल्पित नहीं है, ये अनुभव है मेरा। जी। अब उसमें कहाँ बाल सुधा लेना, कहाँ अभ्रक लेना, कहाँ और लेना, दो दो ही है ऑप्शन, दो ही ऑप्शन है उसके अंदर, या तो बाल सुधा है या अभ्रक है। अब एकदम सुकुमार बच्चा है तो अभ्रक लेना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा है, 3 4 महीने 5 महीने का है तो फिर बाल सुधा लेना चाहिए। बाल जी। सुधा, बाल जीवन वटी, और ताली साजी ले लें, सिकोतला जी को कितना सा चाहिए। 4 महीने के बच्चे को कितना दोगे आप। और इसकी 4 महीने के बच्चे की डोज है 60 mg, और उससे कम का है उसी हिसाब से कम करते हैं। बड़ा है तो 250 mg तक है। मैंने तो 80 80 साल के आदमियों को दिया है, 80 साल के आदमी को। और ऐसे आए हैं कि साहब एक बार यात्रा करा दो हमारी, बद्रीनाथ हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो हम तो जा नहीं सकते, बैठ गए। अब हम तो बच्चे थे उस समय, और बैठ गए हमारे चरणों में आकर के कि साहब हमारे को एक बार यात्रा करा दो। हमने उनको यही फार्मूला दिया, और वो आज भी मौजूद है। 25 साल पहले की बात कह रहा हूँ मैं, जो ये कह रहे थे कि हमारी एक बार यात्रा करा। बहुत अच्छा योग जी। है। और रसतंत्र सार में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब ये जी सर। बात एक अलग है कि रसतंत्र सार राजस्थान के बाहर कम उपलब्ध होता है। जो अपने अपने जो इसके मुख्य प्रायोजक हैं, तो गंगानगर के हैं, गंगानगर में हो जाए। और बालजीवन वटी की कहीं भी आवश्यकता है तो आप मुझे बताएं, मैं उसकी व्यवस्था करूँ। जी सर, थैंक यू सर। इसी तरीके से जो दूसरे योग हैं, जो कभी मान लो किसी कारण से कहीं नहीं बन पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उसकी व्यवस्था भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि हम यही काम में लेते हैं। मेरा पूरे अष्टमा के अंदर 15 योग से ज्यादा नहीं है, पूरे अष्टमा के अंदर, जिसमें प्रतिशय आ गया, कास आ गया, श्वास आ गया, कुल 15 योग। और एक भी मरीज मेरा नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोरोना के अंदर कम से कम 3,000 लोगों को बचा। अब एक अकेला व्यक्ति आयुर्वेद से, वो फार्मूला अलग था, उसकी अपन अभी चर्चा नहीं की, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अब क्योंकि ये तो बहुत बड़ा भंडार है, इसमें तो अपन कितना भी चले, है ना। कोविड के बारे में अलग से आप चाहे तो सोच के रखें, फिर कभी चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। कोविड के पेशेंट अभी भी आते हैं, पोस्ट कोविड के भी आते हैं। सर, हाँ इसमें जो संपुष्पी आपने जो लिया था, हाँ। जनरली संपुष्पी मेद्य द्रव्य है तो उसका कल्क का प्रयोजन बताया गया है। तो जो आपका वो हाइपरट्रॉफी में
था योग, अर्जुन शंखपुष्पी जटामासी सर्पदंड, उसमें फिर हाँ कैसे लेना है एक्सट्रैक्ट, जैसे उस अगर वैद्य घर पे बनाए तो? नहीं, वो क्या है कि वैद्य घर पे बनाएंगे तो फिर घन सत्तू बनाना पड़ेगा उनको, वो थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। या तो अदरवाइज एक्सट्रैक्ट ले, एक्सट्रैक्ट्स लेने? एक्सट्रैक्ट ले लें। एक्सट्रैक्ट्स ओके। उनको 1:1 में इक्वल क्वांटिटी में लेना, उसका जो वो पाँच पाँच में से तीन का इक्विवेलेंट है और तीन का हाफ है, दो का हाफ है। वो हाँ फार्मूला जी। मैं आपको, जो जिनको जरूरत होगी मैं उनको बता दूंगा, वो है मेरे पास में, है ना, ठीक है सर। और मैं ठीक बता सर। दूंगा। हाँ, सर फार्मूलेशन अभी। जितना भी मैंने जो कंपाउंड्स बताए हैं, जितने भी उनका सबके फार्मूलेशन अधिकतर तो मैंने मुझे बता ही दिए, फिर भी कुछ बहुत रह गए होंगे, तो वो सब अवेलेबल है, टेक्स्ट अवेलेबल है। हाँ जी सर। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ अरिष्टक भस्म आपने जो बनाया था वो हाँ। कैसे बनाया है? वो मसी अरे कल्पना के थ्रू है या उसका कोई नहीं नहीं, अनुपात? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बाजार से अरीठा लाए, मिट्टी के कलश में रखा, उसका ऊपर ढक्कन लगाया और उसकी संधि को कपड़ मिट्टी कर दिया। हम्म। ठीक है ना, कपड़ मिट्टी करने के बाद में वो अपना कुक्कुट पुट दिया, ठीक है सर। है ना। एक कुक्कुट में उसकी भस्म बन जाती है, और उसको ठीक। कुक्कुट पुट शीत होने पर उसको निकाल लिया, पीस के बारीक कर लिया, तो होगी सर तैयार उसका वो। जो खोल है वो भी पूरा उसके पूरा सारे पूरा 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 लेना पूरा है? पूरा तो पूरा बीज का भी बन जाएगा? बीज हार्ड बीज होता है ना बीज उससे? बीज खोल पूरा, पूरा पूरा अरिस्टक, पूरा अरिस्टक, ठीक पूरा सर। अरिस्टक, है ना। जिनको अग्निमांद्य के कारण हल्की 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 खांसी बनी रहती है, वो बिल्कुल जड़ से, और ज्यादा लंबा भी नहीं है इसका, ज्यादा लंबा नहीं है इसका प्रयोग, 15-20 दिन अधिक से अधिक, अच्छा ही हो गया, अनुभूति हो गया। और बताएं। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, नस्य किस चीज का देते हैं आप? नस्य का क्या है, वैसे तो सबसे अच्छा नस्य जो है वो पंचांग कंटकारी के द्वारा सरसों के तेल को सिद्ध कर ले, कंटकारी का क्वाथ बना लें, पंचांग का क्वाथ बना करके, जो अपने जो घृत तेल की सिद्ध की जो कल्पना है उसके आधार यस। पर, और सरसव तेल को अपन सिद्ध कर ले। अगर वो नहीं हो पाता है तो सामान्य जो सरसों का तेल है अपना, सरसव तेल, उसको अच्छा गर्म करके ठंडा कर ले। अच्छा गर्म करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो जीरेनियम जो होता है जिसकी वजह से उसमें धांस आती है, वो नहीं रहना चाहिए। अगर वो है तो पेशेंट नहीं डाल पाएगा उस तेल को, वो खत्म होना जरूरी है। तो वो एक बार तेज गर्म कर देंगे तो उसमें वो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं। तो हम तो वही करते हैं, हम कहाँ किसको बोलेंगे कि ये लाओ वो लाओ, सीधा सीधा घर पर अपना सरसों का तेल गर्म करके ठंडा करके रख लो, हो जाएगा उसमें काम। अच्छा, इसमें नशे में एक सामान्य विधि है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो बताना चाहिए। ये एक तो सुबह नहाने के बाद और एक रात को सोने से पहले करना क्या चाहिए, मरीज को बिस्तर पे लेट जाना चाहिए और कंधे के नीचे तकिया रखना है। ठीक है, तो गर्दन पीछे घूम जाएगी, और फिर ड्रॉपर से दो दो बूंद तेल डाल के और सांस को ऊपर खींचना, ताकि तेल मस्तिष्क में चले जाए, मतलब अपने अपना ये जो साइनस है, साइनस के अंदर उतरे जाए। साइनस में तेल जाना जरूरी है, वरना वो गले में आ गया तो फिर दिक्कत है। और वो गले में कब आता है, जब आदमी बैठे बैठे तेल डाल लेता है, खड़े खड़े भी डाल लेते हैं, उसमें फिर वो परेशानी। सर तो इसी क्या में हमने, प्रश्न है, जब कोरोना हाँ काल आया था तो हाँ, म्यूकोरोमाइकोसिस आया था, तो उस वक्त नस्य को कारण माना कुछ लोगों ने कि उसके नस्य की वजह से, तेल की वजह से फंगल ग्रोथ हुई है। देखो उस पर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई, क्योंकि माइकोटिक लंग पोस्ट कोविड में जो आए, ना तो उनका इलाज हो पाया, इलाज हो ही नहीं पाया, और परसेंटेज भी बहुत कम थी उस तरफ, अभी तक भी किसी का ध्यान नहीं है। अब क्या है, कोविड में इतने कॉम्प्लिकेशंस आज भी हैं। आज राजस्थान के अंदर 5,000 पेशेंट्स पॉजिटिव आए। अब वो कह रहे हैं ये थर्ड वेरिएंट है, ये फोर्थ वेरिएंट है। मैंने जब कोरोना को पढ़ा तो उस समय 28 वेरिएंट्स उस समय आ चुके थे, यानी जून 20 में 28 वेरिएंट्स आ चुके थे।
अब ये तो जून 20 की बात कर रहा हूँ, अब जून 23 आने वाला है, तब तक और जाने कितने वेरिएंट्स उसमें जुड़ गए होंगे। इनफैक्ट यह जो बीमारी हुई है कोरोना का, यह अभी तक यह भी फाइनल नहीं हो पाया है कि यह कोई वायरस से हुआ है या किसी एंटीजन को एक्टिवेट किया गया है बॉडी के अंदर। मेरा जैसा मानना है कि इसमें वह बूस्टर्स डाले गए हैं वातावरण के अंदर कि जिससे पेशेंट्स के नॉन एक्टिव एंटीजेंस एक्टिव हो, जो हार्मफुल एंटीजेंस थे वो एक्टिव। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं नहीं कह रहा कि मैं ऑथराइज हूँ, लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग। और वो थिंकिंग का बेस क्या बना है कि जो वैक्सीन हमने इंडिया में दिया, उसकी जो थ्योरी थी वो एंटीजन बेस्ड थ्योरी थी। और आपको आश्चर्य होगा, हमें से बहुत लोगों को पता होगा, कोरोना के पूरे विश्व में केवल वुहान के अंदर 100 मरीज थे। उस समय इंडिया के अंदर कोरोना की वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका था। आश्चर्यजनक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, ये यानी नवंबर 19 2019 में वैक्सीन पर काम हो चुका था और जुलाई 20 के अंदर हमारा वैक्सीन तैयार था। जनवरी 21 में हमने वैक्सीन स्टार्ट कर दिया कि वी आर द पायनियर। और इस वैक्सीन का जो आधार था वो एंटीजन। उन्होंने एंटीजेंस जितने एक्टिवेट हुए थे उनको डीएक्टिवेट कर दिया। और बहुत बड़ी विनिंग है, वर्ल्ड में नाम है आज हमारा वैक्सीन। वी आर द लीडर। कोरोना का जितना जो कुछ हुआ उसमें हम वर्ल्ड में लीडर है, बिकॉज ऑफ थ्योरी। अब इसको कोई मानता है, कोई नहीं मानता, अब तो मानना पड़ेगा। हाँ जी है ना? सर। हाँ। सर जैसे अभी जो चल रहा है वायरल, जिसमें बहुत ज्यादा सिवियर हेडेक है, फीवर इतना नहीं आता, नोज ब्लॉक है, हेड में हाँ, हेवीनेस है, उसके यह लिए क्या करेंगे? यह यह जो 2023 में और अपना ये जुलाई 22 से स्टिल एज ऑन टुडे, यह पित्त की वृद्धि के साथ में श्लेष्मा का और वृद्धि हुई है। यानी पित्त और श्लेष्मा दोनों एक साथ बढ़े हैं। ऐसा प्राय नहीं होता, प्राय नहीं होता ऐसा, लेकिन दोनों बड़े हैं और पर्याप्त बड़े हैं। मतलब पित्त इतना बड़ा है कि ज्वर 4 दिन पहले नहीं जा रहा, इतना पित्त बड़ा है। जब मर्जी आपकी दे दो, पैरासीटामोल दे दो, इनमें स्लाइड दे दो, आपकी मर्जी है जो दे दो, लेकिन फीवर डाउन नहीं हो रहा। फीवर डाउन हो रहा है 4 दिन बाद। और गुरु जी के प्रयोग से, अमृता के प्रयोग से हो रहा है। संशमनी वटी हम काम में लेते हैं, गुरु की घन वटी हमने इसमें काम में ली। और इसका सबसे अच्छा योग है अपना ये महासुदर्शन घन वटी। लेकिन उन 5 दिन के लिए आपको क्या करना, स्टिफ नोज है तो महासुदर्शन से नहीं जाएगी, उसके लिए हमें बाल सुधा के साथ त्रिभुवन देना पड़ेगा। क्योंकि त्रिभुवन देंगे तो और शुष्क हो जाएगा, तो बाल सुधा के साथ त्रिभुवन देंगे। और उसमें भी दिक्कत आती है, तो फिर ताली शादी और साथ में जोड़ते हैं, ताकि कफ शुष्क नहीं होना है। कफ शुष्क हुआ तो वो 2 दिन बाद वापस आ जाएगा, साहब खांसी इतनी तेज हो गई कि हम परेशान हो गए। और ऐसा हुआ है, खांसी इतनी तेज हुई है, 20-20 दिन तक खांसी नहीं हुई, 1-1 महीने तक खांसी नहीं हुई लोगों की, इतना शुष्क हो गया। उनको अपना राजस्थान में इधर हमारे काफी चलता है, मुनक्का को दूध में उबाल के देते हैं, वो जाकर के तब वो उसका पित्त का और कफ का शमन हुआ। ये इसमें जो अभी का जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, अब तो हमने अगर करते भी हैं तो कम मात्रा में 3 दिन प्रयोग करते हैं त्रिभुवन त्रिभुवन कीर्ति का, बाल सुधा के साथ, बाल सुधा, शुभ्रा, गिलोय सत्व और त्रिभुवन कीर्ति। लेकिन हम कम मात्रा में देते हैं, तो त्रिभुवन कीर्ति 50 mg बस। और सर इसमें जो सिवियर हेडेक होता है उसमें भी यही देना है? फीवर हेडेक इसी से जाएगा, इसी से जाएगा, सुदर्शन घनवटी से चले जाएगा। ठीक सर। क्योंकि जो महासुदर्शन घनवटी है उसका मूल आधार पित्त श्लेष्मा ठीक सर। है ना। हाँ, हाँ जी सर। वो तो सर एक एक और क्वेश्चन है सर। रीठा भस्म का डोज क्या रहेगा और अनुपान क्या रहेगा? 250 mg एडल्ट डोज। सर ये फॉर्मुलेशन आपका फेमस होने वाला है।
250 mg को साथ में कुछ भी मिला दो, जो ताली शादी मिला दो, सीतोपलादी यस, मिला दो, चीनी मिला दो, यस सर। है ना। जो अरिष्टक भस्म है उसकी एडल्ट डोज 250 mg, ठीक सर। है ना। सर और 10 साल से कम को हमने नहीं दिया, 10 साल से नीचे वालों को नहीं दिया, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं दिया। और बाल जीवन बट्टी हमने 3 दिन के बच्चे को भी दी, और ठीक है 3 दिन का बच्चा भी ठीक हुआ है ना। डोज उसी के अकॉर्डिंगली रखा, यस। है ना। हाँ, सर छोटे बच्चों को नस्य पेरेंट्स नहीं प्रेफर नहीं 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 करते, नहीं कर, नहीं दे तो सकते। उस कंडीशन में क्या करना है? नहीं नहीं, जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं। 8 साल से नीचे के वाले को नश्य देना जरूरी नहीं है। दे भी नहीं पाएंगे और देना भी नहीं चाहिए। उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। बच्चा है, मचल गया, गर्दन इधर से उधर घूम गई, वो तेल पता नहीं कहाँ चले गया, और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। 10 साल से कम की उम्र वाले को नश्य नहीं देना, तो उसके जबरदस्ती लिए नहीं सर करना। कोई और रास्ता? ये जो जो हमने बताया ना आपको, बाल जीवन बट्टी, बाल सुधा, अभ्रक, ये पर्याप्त है। ठीक। और एक हमने जो वासाखंड कुष्मांडा बताया था आपको, ये हमने 6 महीने के बच्चे को शुरू कर दिया। वासाखंड कुष्मांडावले बहुत अच्छा योग है, पित्त का शमन करता है। कुष्मांड है, वासा है, दोनों पित्त का शमन करते हैं। और पिप्पली प्रक्षेप द्रव्य है, तो अग्नि के द्वारा कफ का पाचन करता है, और जो कफ बना हुआ है वो वासा से निस्सारित हो जाता है। बहुत अच्छा योग है ये वासाखंड कुष्मांडावली। ज्यादातर प्रचलित जो योग है वो है कुष्मांड खंडावली, उसमें वासा नहीं होता, बाकी सब सेम है। और वासा डाला तो वासाखंड कुष्मांडावली बन गया। चक्रवृत्ति में है इसका फॉर्मूला। और ये सब ओके। चीज हमारे यहाँ हम बनाते हैं, क्योंकि हम, हमारे को तो लंबा समय हो गया ना इन सब चीजों को उपयोग में लाते लाते, तो इसलिए ये सब चीजें हम यस। बनाते हैं। और बताएं। सर एक और क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में और इन्फेंट्स में इम्यूनिटी के लिए बेस्ट मेडिसिन क्या है जो डेली बेस पे दे सके? किसके लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वासाखंड कुष्मांडा। ठीक सर। और सर बहुत। एक और रिक्वेस्ट है, आपका नंबर शेयर कर दीजिए प्लीज। 9411490383। 941। 4190 383। ठीक सर। कीर्ति। 6 महीने के बच्चे को वासाखंड दे दिया, बच्चा भी हष्ट पुष्ट हो गया, और बीमारी भी मिट गई। और एक चीज में 1 मिनट और लेना चाहूंगा, बात सही है। इसमें हमारे पास में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए जो बचपन में, जिनको निमोनिया लंबे समय तक रहा, और बाद में पिगन चेस्ट हो गया। और पिगन चेस्ट होने के बाद में वो स्ट्रक्चर जो है उनका, अपना रिब्स का, वो नॉर्मल नहीं हो पाया। यानी 10 साल का बच्चा हो गया, अब पिगन चेस्ट तो नहीं है, लेकिन उसकी रिब्स नॉर्मल नहीं हो पाई, और बच्चा इम्यूनाइज नहीं हो पाया, और उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाई। तो उसको हमने, वो जो हृदय बल्ला बोले है, जो बताया हमने आपको, हृदय बल्ला बोले, उसका प्रयोग किया। उसको तीनों चीजों में फायदा मिला। उसका वो मलेशिया भी ठीक हो गया, उसके मलेशिया भी ठीक हो गया, और ग्रोथ भी अच्छी हो गई, और बॉडी इम्यूनाइज हो गई। और जो बच्चा ये सोच रहा था कि क्या पता मैं कितने साल अब और जीऊंगा, वो बच्चा आज फर्स्ट क्लास, मतलब IITN और फॉरेन में सर्विस कर रहे हैं। यस सर। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस स्थिति वाले, मान लो 8 साल का बच्चा अस्थमा हो गया उसको, तो 8 साल के बच्चे को अस्थमा हो जाता है। अब उसका क्या करोगे, और इम्यूनाइज नहीं है, तो उसको फिर वासाखंड और ये दोनों दी, और बालजीवन वगैरह जितना भी जैसा सिम्टोमेटिक साथ में दिए। लेकिन ये दोनों तीनों जो द्रव्य मैंने बताया, हरिद्रा कंठकारी अवली, हरिद्रा अद्रक अवली, अपना ये वासाखंड कुष्मांडावली, ये सौवर चला दी योग, बहुत अच्छे योग, इस मतलब ये बता रहा हूँ, बहुत अच्छे योग है, इनका अध्ययन करना चाहिए। यस और सर। बात, और बताएं।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इतना इतना कुछ आपने इतने छोटे से मतलब सेशन में बताया, देखो अपने देखो, जीवन का पूरा ज्ञान हमें दिया, और बहुत इजी फॉर्मुलेशंस हैं शायद सर। इजी, और वेरी इजी। 3 और 4 तो मुझे लगता है हम लोग कल से ही बनाना स्टार्ट कर देंगे सर, इतना कॉन्फिडेंस आया है। मैं आपको उससे और अधिक कह रहा हूँ, जितना आप में मैंने जो शो किया है वो बहुत कम शो किया है। मुझे उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और सर मैंने आपसे जैसा कहा, सेशंस लेते रहेंगे सर, आप हमसे हाँ जुड़े ठीक है, रहिएगा। हम आपसे बिल्कुल। जुड़ना चाहते हैं हाँ और बिल्कुल सेशंस जुड़िएगा लेंगे आप, सर। लीजिएगा, बिल्कुल लीजिएगा। मेरा मेल आईडी शायद नहीं होगा। मैं पोस्ट कर दूंगी सर आपसे लेके ग्रुप में। हाँ हाँ, आप मेरे को ग्रुप में डाल दीजिएगा तो फिर मैं उसमें, ये यस। नंबर मेरा आपको नोट हो गया ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। और आपसे सर बहुत जल्दी हम नए सेशंस, एक पूरी आपकी सीरीज रखना चाहते हैं, एक रखिए ना कोई भी आप। आपकी डिजीज। मेरे को आप 2-3 दिन पहले सब्जेक्ट दे दीजिएगा, ठीक है ना? सर। और किसी भी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट तो मैंने इसलिए लिया कि इस पे मेरा बहुत लंबा अनुभव है। यस सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अनुभव खाली यहीं खत्म हो गया। और भी यस। बीमारी, यस। यस और भी, और भी सब बीमारी हैं। सर, अभी आप चलिए। हमारे साथ ही रहे सर। कुछ सूचनाएं हैं हाँ और आपको हम सुनना भी चाहेंगे। और अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं डेलीगेट से कि उनको आपकी क्लास कैसी लगी। कोई भी डेलीगेट जो अपने विचार रखना चाहते हैं इस क्लास के बारे में, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ हेलो मैम। यस। यस हेलो। हाँ सर। हाँ, यस। बोलिए सर। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर बहुत 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 अच्छा हुआ सर आपका क्लास। इतना क्योंकि हम देखिएगा, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, आप, आपकी बात का मैं समर्थन करके एक बात उसमें और जोड़ता हूँ। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो आयुर्वेद को समझ पाए, और उससे ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनको आयुर्वेद की चिकित्सा मिल पाई। या सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर सर ये जब भी हमारे क्लिनिक में ज्यादातर ड्राई कॉफ के बहुत लोग आते हैं सर। हाँ हाँ। सर कैन आई यूज योर कंठकारी घृता डायरेक्टली विद देम? कंठकारी घृत में दो चीज है, कंठकारी और गिलोय। हाँ सर। और दोनों का कल्क भी है और क्वाथ भी और ओके केवल सर। इन्हीं दो द्रव्यों से शुद्ध घृत है ना? ओके सर। तो हाँ पित्त सर। और वात दोनों का शमन होता है। ओके सर। कंठकारी वायु का शमन करती है, पित्तवर्धक है। और गिलोय वात को भी बढ़ाती है लेकिन पित्त का शमन करती है। ओके सर। इसलिए वात पेत्तिक में दे सकते हैं, थैंक यू सर। दे सकते हैं। और और सर घृत तो है। राजस्थान में तो कंटकारी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में हाँ, अवेलेबल है। देखो मैंने, मेरा जो अनुभव है फॉर्मुलेशन के अपने इसके बारे में, रसायन शाला के बारे में, हमें स्ट्रिक्ट काम में लेना। हम द्रव्यों को नहीं पहचान पाते हैं, और द्रव्यों में इतनी भिन्नता आती है, स्वाद में अंतर, परिणामों में अंतर, कहीं से कोई चीज कश्मीर से आई, कोई चीज कन्याकुमारी से आई, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आएगा। तो स्टेट के अंदर उसका पहले पूरा एनालिसिस होकर के उसके बाद जो स्टेट बन के आता है ना, उसमें एक स्टैंडर्ड डेवलप। यस सर। मैं ना, सर शीत पित्त तो का कोई फॉर्मुलेशन आपके शीत पित्त, अनुभव के अनुसार? शीत पित्त के लिए आ, हरिद्रा खंड 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से, सुबह शाम खाली पेट, है ना? और सारी वाद्या सब 4-4 चम्मच भोजन के बाद। ठीक है। तत्काल राहत के लिए, तत्काल राहत के लिए मधुक्षार, यानी अपना खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मधुक्षार, इसका 10% का पानी में घोल, पानी में, इसको अपन नारियल तेल में भी ले सकते हैं और पानी में भी ले सकते हैं, दोनों में तैयार कर सकते हैं। स्थायी रूप से बना के रखना है तो नारियल तेल में 10% ये अपन डाल दें खाने का सोडा, यानी मधुक्षार।
और पानी में बनाना है तो जितना पानी लिया उसका 10% डाल लें और उस पानी का लेप कर लें। लेकिन ये शुरू हो जाना चाहिए इचिंग शुरू होने के पहले, तो फिर इचिंग नहीं होगी। इचिंग हो गई तो फिर थोड़ा मतलब इरिटेशन देगा, लेकिन इचिंग रुक जाएगी। थोड़ा इरिटेशन देगा क्योंकि मधुक्षार है ना, थोड़ा इरिटेशन, लेकिन इचिंग रुक जाएगी। और स्थायी रूप से बना के रखना है तो अपन नारियल के तेल वाला भी कर सकते हैं, ये लोकल यूज के लिए है। ये तीनों द्रव्य बिल्कुल पर्याप्त हैं, चौथे द्रव्य की जरूरत नहीं है और हैवी नहीं कोई। बहुत मैंने अपने चरक संहिता का जो महाकषाय है, कंडुग्न महाकषाय है, वो दिया और बहुत सारे योग बनाए, सब बेकार है, सब बेकार है। यह जो योग है, जो तीनों चीज मैंने आपको बताई, ये तीनों अलग अलग अनुभव से आई, लेकिन तीनों को साथ में देने के बाद में 1-1.5 महीने में 2 महीने अधिक से अधिक स्थायी रूप से लाभ होता है। शीत पित्त के 25-25, 30-30 साल पुराने मरीज आते हैं, 30 साल पुराने मरीज आते हैं। अब 30 साल के मरीज अगर आपने 2 महीने में 4 महीने में ठीक कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। और होगा, बिल्कुल होगा। स्किन डिजीज पे भी आप रख लीजिएगा, आप जिसमें चाहें उस पे रख लीजिएगा। यस हाँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा टाइम थोड़ा जल्दी करिए, श्योर सर। क्योंकि 10:30 अब अभी 11 बज रहे हैं। यस श्योर सर। है ना, मैं जानता हूँ इस बात को कि 15-20 मिनट 25 मिनट एक्स्ट्रा लगता है और यस मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ, है ना। ठीक ठीक तो सर। थोड़ा जल्दी, क्योंकि शाम के समय मेरे पास कोई काम नहीं है। यस सर। मेरी क्लिनिक सिर्फ सुबह 10 से 12 रहती है, ठीक सर, सिर्फ श्योर सुबह। सर, पक्का सर, पक्का। ठीक है ना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, आप हमसे अभी नो जुड़े नो रहिए सर। नो नीड ऑफ एनी फॉर्मेलिटी। यस सर, आई यस एम फॉर आयुर्वेद, आई एम ऑफ आयुर्वेद, आई एम फॉर द आयुर्वेद। यस सर। सर आयुर्वेद डॉक्टर गोपी कृष्णा सर आपसे बात करना चाहते हैं ठीक सर। करवाइए। यस तो सर बहुत अच्छा हुआ, इट वाज वंडरफुल सेशन। प्रणाम इसमें आपको, आपके एफर्ट्स हमें बहुत अच्छे लगे। अच्छा, मुझे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि मैं रस औषधि बहुत कम काम लेता हूँ, ओके है ना, कम। क्योंकि मेरा कुछ ये सोच है कि जितना काष्ठोषधियों से अपन चिकित्सा करेंगे तो दुष्प्रभाव कम आएंगे। जी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हर उम्र वाले को दे सकते हैं, हर परिस्थिति में दे सकते हैं। रस औषधियों के साथ में थोड़ा लिमिटेशन रखना पड़ता है, सावधानी से चयन करना पड़ता है औषधि का। लापरवाही करते हैं तो फिर उसके दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि रस शास्त्र जो है ये इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों में, वो दूर होनी चाहिए। उसके बारे में वो तो आप इतनी तो नॉलेज मेरे में नहीं है, लेकिन जो भी है, जो इंटरनेशनली रस शास्त्र के बारे में मिस और जो आपका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, इसको हमें सबको मिलकर रोकना चाहिए। जी मेरी इस बारे में भाभा रिसर्च सेंटर वालों से बात हुई है एंड दे मतलब दे अप्रूव मी कि आप यू आर राइट। VRC से बात हुई है मेरी इस बारे में, आप बताइएगा मेरे को इसके अंदर कि आई एम राइट और दे आर राइट। बोले यू आर राइट। ये इंटरनेशनली, और ये क्या है, जैसे अभी कोरोना का हुआ, कितना दुष्प्रचार हुआ हमारे वैक्सीन के लिए, और आज उन सबको यही वैक्सीन लेना पड़ा। फाइजर का दिवाला निकल गया, वो रशिया का स्पुतनिक जो है वो यहाँ आकर के कारखाना डाला तो भी नहीं चला पाया, वो भी फेल हो गया। और यही चली कोविड एंड कोवैक्सीन ये अपना कोविशील्ड और कोवैक्सीन, बिल्कुल यही बिल्कुल। चला। ये क्या है, इंटरनेशनली गेम है ना। और इनको आयुर्वेद नहीं चाहिए, इनको आयुर्वेद से मतलब नहीं है, इनको पैसे की कमाई से मतलब है। दे ऑल आर प्रोफेशनल। सर एक बात मैं इधर बोलना चाहता हूँ, आपको आईफिल टावर देखना है तो आपको पेरिस जाना ही पड़ेगा, आईफिल टावर इंडिया में तो नहीं आएगा।
तो आयुर्वेद आएगा। आपको लेना है नहीं, आयुर्वेद हाँ, आपको लेना है तो आपको इंडिया में आना चाहिए, हम ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में आना पड़ेगा। एंड आई एम पड़ेगा। रियलाइजिंग इन फोर्टी यस। 40 ईयर्स यस। महेश योगी ने जो नोएडा के अंदर जो अपना सेंटर शुरू किया, कोई दुनिया का अस्पताल इतना महंगा नहीं है जितना महंगा वो नोएडा वाला अस्पताल महेश योगी का है। दुनिया में नहीं है उतना महंगा कोई अस्पताल। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जी। 5 lakhs rupees 40 years back per day. हम्म। They will arranging showering of oil राइट। of controlled temperature. Their entry starts with red carpet. Their living is 7 star. ओ। That is in India. यस। That is in India. I am talking about this resort of this Manakchand Dhariwal. ओके। हम्म। Uh, he is treating cancer there with the यस। help of Gomutra, Panchagavya. यस। I am यस। also working on nowadays. I am working on this ओके। Panchagavya and cancer. जी। इस पे भी कभी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम रसौषधि भी काम में ले रहे हैं। एक बहुत अच्छी औषधि है सर्वेश्वर प्रॉपर्टी, आप भी यस। अध्ययन कीजिएगा उसका। और वो कहाँ मिलेगी? ये जो ऊंजा फार्मेसी के भारत भेषज सार संग्रह है, 5 पार्ट है उसके, जी। केवल वही है, वो और कहीं नहीं है। सर्वेश्वर प्रॉपर्टी, यस सर। इसका हमने किया और बड़े अच्छे परिणाम। रसशास्त्र यूं नहीं है, मैं रसशास्त्र तो बहुत ग्रेट चीज है, लेकिन उसके साथ में अध्ययन बहुत गहरा है। जितनी इफेक्टिव फास्ट एक्टिव मेडिसिन होगी उसका रिएक्शन भी उतना ही फास्ट है। यस। मेरे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से बात हुई, मैंने कहा आप ये आइसोलेट क्यों नहीं करते हो इनको, एक्टिव प्रिंसिपल्स को? उन्होंने कहा जैन साहब, जितना एक्शन होता है उसी पावर से रिएक्शन भी होता है। अभी आप कितना भी कुछ भी दे देते हो, रिएक्शन भी हुआ तो वो कुछ समय में ठीक हो जाएगा। जी। और अगर हमने आइसोलेट कर लिया और उसका रिएक्शन हुआ, फिर इसको कौन ठीक करेगा? यस। अच्छा, तीसरी बात और है इसके अंदर, उन्हीं से ये बात भी हुई कि प्लांट्स के अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल्स के साइड इफेक्ट है, हम्म। उसकी एंटीडोट कुदरत ने उसी प्लांट्स में दी। फॉर एग्जाम्पल क्विनिन, आपका ये सिंकोना, यस। सिंकोना क्विनिडिन कार्डियक के लिए बहुत डेंजरस है। ये आपका जो सिंकोना का जो स्टेट है, उसको क्विनिडाइनिन उसी के साथ कुदरत ने उसमें डाल दिया। यस। तो अगर हम होल एस्पेक्ट ऑफ क्विनिन बार्क लेंगे, सिंकोना बार्क लेंगे, तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा। राइट। ये सब चीजें बहुत लंबे, और एक एक जीवन में नहीं होता ये। बिल्कुल सर। आपकी जो ये स्टेज आई है, एक जीवन की नहीं है, तो प्रभु के आशीर्वाद से होता है। आयुर्वेद को समझना इतना आसान है, पीएचडी कर लेना, एमएस कर लेना बहुत आसान है, आयुर्वेद को समझना बहुत। और हमें हमें ये सौभाग्य मिला है, हमें गुरु बहुत अच्छे मिले, हर स्तर पे गुरु मिले, बहुत अच्छे गुरु मिले, ये मेरा भाग्य है। तो फिर भी आप इधर आए सर, अपना जो विशाल ज्ञान है आप हमसे बांटा है, रियली ग्रेट। और आ थैंक यू। जाएंगे ना, जब आपका आदेश होगा आ जाएंगे। बिल्कुल सर, मैंने एक डेफिनेटली। निवेदन किया है, मैं आयुर्वेद के लिए हूँ, अभी मेरा ऑब्जेक्ट केवल आयुर्वेद। वंडरफुल सर। आई एम फॉर द आयुर्वेद, अभी और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा। मेरे को घर की तरफ से कोई चिंता नहीं है, वेल टू डू है सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक ही है कि आयुर्वेद बढ़ना यस। चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, है ना?
इसका कैंसर पे आप रखिएगा, मैं बताऊंगा, काफी कुछ बताऊंगा। Yes. लोगों को बड़ा अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा इससे। बिल्कुल सर। रखिए। ओके, थैंक यू सर। इट इज 11 पास्ट। इट्स हार्डली मैटर, पर थोड़ा अच्छा लगता है अगर थोड़ा जल्दी होता ना, तो और अच्छा मतलब इसमें। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, आपने अपना समय दिया, और थैंक यू टू ऑल द डेलीगेट्स। जो ये हमारे सेशन हैं इनके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो IIR की वेबसाइट पे हैं। द वेबसाइट इज www.iiar.com. that I have seen, that I have seen. Yes. Website I have seen. Just now. Yes sir. तो अब मैं उसका स्टडी करता हूँ, है ना, yes. उसका स्टडी करता हूँ। So all the delegates are requested to download their certificates, and they can also avail the recordings. हाँ, और इसको विदाउट कन्वर्टिंग इन यूट्यूब, अगर मैं उसके भी मतलब अगर किसी को नहीं ध्यान होगा तो हाउ टू कन्वर्ट इन टेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट वीडियो इन टेक्स्ट, इसका एक सॉफ्टवेयर है, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। Yes sir. कन्वर्ट ऑफ वीडियो इन टेक्स्ट, इसका सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी हो जाएगा। Yes sir. है ना। हाँ, हेलो मैम। हेलो मैम। क्योंकि अभी 1 घंटे की स्पीच तो 200 MB के ऊपर चली गई, आप इसको कहीं भेज तो सकते ही नहीं है। Yes. आपकी वेबसाइट पे रहेगा ये, अब तो डाउनलोड कर सकते हैं, वो कर लेंगे, लेकिन आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर नहीं कर सकते इसको। मोर देन 300-400 उस पर चली गई होगी ये MB पे। Okay sir. इतनी हेवी फाइल कहीं जाती। हाँ जी सर, हेलो मैम। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हेलो मैम। हाँ, Yes sir. मैम वो सर का नंबर दो मैम और एक बार। It's there in the चैट बॉक्स। chat box sir. सर वन Pardon? सेकंड प्लीज मैम, प्लीज Wait. इफ इट 9414 1 ओके 41 मैम। 94141 90383. Dr. Kirti Jain. मैम 1 सेकंड प्लीज 9414 1 94141900383. ओके मैम, थैंक यू मैम, Thank you sir. मैम। इट्स हेलो राइट। मैम। आपका हेलो। हाँ हाँ, हाँ जी सर। मैम और थोड़ा क्लासेस सर से लिए तो अच्छा होता मैडम, यू कैन अरेंज फ्यू Yes, क्लासेस yes. फ्रॉम सर। Yes, Okay, sir. ma'am. We will arrange a whole session from sir after discussing with him. So it's great to have a great Vaidya among us who is sharing all his knowledge of this much years on this dais, and he willingly said us, "Yeah, I will take the class." So it's a great gesture from Dr. KK Jain from Kota, and we are soon going to publish the book from KK Jain sir very soon. ओके मैम, एक 4-5 क्लास कर दिया तो अच्छा हो जाता मैडम क्लिनिक के लिए। Yes sir. सभी विषय में मैम, सभी विषय में। खाली Yes. अभी तो हम खाली का जो कफ में एक लिया वो तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और भी सर से और थोड़ा ज्ञान लेंगे मैडम, हमारा सौभाग्य होगा सर से। जी जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, थैंक नाइस सर, नाइस, थैंक यू। So thank you all of you. Thank you sir. Pranam sir. Pranam Gopi sir. Thank you ma'am. Thank you all the delegates. And for the information of all the delegates, we are concluding this session on the allergic disorders by today. And possibly around 3rd week and 4th week, tentatively, we are starting another course on cardiology. So be watchful over our website, wherein we will be launching this particular new sessions. And you can register as early as possible and avail the recordings and become a master of cardiology. Yes. Sure sir. Yeah. Good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.